Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 29 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स, हम अपने डेली के करंट अफेयर्स करें उससे पहले हम आज रिवीजन करेंगे। कुछ बहुत अच्छा सेशन होता है रिवीजन का। जो पुराने करंट अफेयर्स होते हैं पास्ट के 1-2 दिन के या पिछले हफ्ते के, वो आप यहाँ पे रिवाइज इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्मुगाओ। ये एक सेकेंड डिस्ट्रॉयर है ऑफ प्रोजेक्ट 15B जो कि अभी इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। मडगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इन्होंने इनको डिलीवर किया टू इंडियन नेवी। सेकेंड, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 नवंबर को, मार्क करेंगे। और 26 नवंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, किनको अभी रिसेंटली नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? मलेशिया का। कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मलेशिया के। फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्टनरशिप की गई है अभी बीएससी के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन से? टीएसी सिक्योरिटी से। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बीएससी ने अभी किन के साथ टाई अप किया फॉर साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप? तो वो रहेगी टीएसी सिक्योरिटी। एंड साइबर अटैक्स बेसिकली क्या होते हैं? जो आपके इंटरनेट के थ्रू होते हैं, जैसे आपके डाटा को हार्म किया जाता है। ठीक है, तो बीएससी ने टीएसी सिक्योरिटी के साथ टाई अप करा। फिर आ जाते हैं ऋषि सुनाक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति। ये अभी यूके की एशियन रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया। इस यूके एशियन रिच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 101 लोगों का नाम आता है इस लिस्ट में, और ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति ये 17th पोजीशन पे थे। हिंदुजा फैमिली फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो ड्रॉप किया गया है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, वो ड्रॉप्स फॉर 5th क्वार्टर टू 7.2% एज पर NSO, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के हिसाब से। जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, एक रूरल और एक अर्बन, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट का रेट ड्रॉप कर गया है फॉर द 5th क्वार्टर टू 7.2%।
फिर आ जाते हैं नसीम अल बहर। ये नसीम अल बहर ये 13 एडिशन है ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। लोकेशन अगर पूछी जाए कि ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट कराई गई थी, तो ओमान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, जो कि 13th एडिशन है बायलेटरल एक्सरसाइज की, जिसमें इंडियन नेवी ने एंड ओमान नेवी ने पार्टिसिपेट करा था। और एक्सरसाइज का नाम रहेगा नसीम अल बहर। फिर आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, DIY क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम है डिजी फसल। ये डिजी फसल जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एब्सोल्यूट के द्वारा इसको लॉन्च करा गया, ये भी याद रखेंगे। ठीक, फिर आ जाते हैं किनको अभी फ्रेंच नेशनल ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वो डायरेक्टर जनरल हैं इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स की, IFCCI की, पायल कन्वर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। रीज़न क्या था? इंडिया और फ्रांस के बीच में ट्रेड रिलेशंस को बेटर करने के लिए और ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो इनको कन्फर किया गया फ्रेंच नेशनल ऑर्डर से, ये भी याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं रवि कुमार सागर। इनकी बात करें तो ये कोविड-19 के टाइम पे वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर निखर के सामने आए। रीज़न बीइंग, जिन लोगों को भी PPE किट की ज़रूरत होती थी, ये उनको वहाँ पे अवेल कराते थे, और ऐसे ही इन्होंने ट्रेड कर करके कुछ 2 करोड़ रुपए कमाए ड्यूरिंग कोविड-19 विद हेल्पिंग पीपल। इसी के लिए इनको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी टाइटल दिया गया, और इसी के लिए इनको अभी डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? वो है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर रवि कुमार सागर। तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके जो हमें आज के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक CEO राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म। अब देखो, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या हो गया? सबसे पहले तो आप यही समझिए कि टूरिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पर। जैसे भी आपने श्रीलंका का देखा, वन ऑफ द रीज़न श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी डाउनफॉल पे है कि वहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। पहले कोविड से पहले जो नॉर्मल टूरिज्म होता था वहाँ पे, वो तो अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। एंड अगर इकोनॉमी की ही बात करें तो आप देखेंगे जो टूरिज़्म है ना, किसी भी लोकेशन की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर इंडिया में स्टेट्स देखें, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में देखें आपका उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर भी कहीं तक देखें, तो ये वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे क्या है कि टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके इकोनॉमी में, लोगों को वहाँ पे रोज़गार देने में। ठीक, तो इसीलिए अभी CEO राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म ये एक ऑर्गेनाइज कराई गई। किनके द्वारा? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई गई इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिनका हेडक्वार्टर है नायरोबी कीनिया में, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन तीनों के द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। और यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली 3 चीज़ों पे, इनिशिएटिव्स पे साइन किए गए जो ध्यान रखने की बात की गई, जैसे ट्रैवल फॉर लाइफ प्लेज, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल कैंपेन एंड ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव। यहाँ पर बेसिकली बात की गई है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनको ध्यान में रखते हुए हम टूरिज्म को बढ़ाएं, और जो टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, वो भी क्लाइमेट की तरफ अपना रुझान रखें, क्लाइमेट से रिलेटेड पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, गंदगी कहीं ना फैलाएं। कहीं पर जा रहे हैं तो एक कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जा रहे हैं, तो आपको एक दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आपको दूसरे कल्चर के बारे में नॉलेज होती है, वही नॉलेज आप अपने पास वापस लाते हैं, अपने कल्चर में लोगों को बताते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए CEO राउंड टेबल और ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू enhance engagement and participation of industry stakeholders in the transition of tourism sector towards sustainability। मतलब जो आपके, अब देखो टूरिज्म भी क्या होंगे, टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? टूरिस्ट वहाँ जाएंगे जो दिखने में जगह अच्छी होगी, अपीलिंग होगी, जहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, या फिर वहाँ पे कुछ डिफरेंट है जो लोगों को लुभा रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे इंडस्ट्री के, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो लोग क्यों कहीं घूमने जाएंगे। ठीक, अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़े टाइम पहले एक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पैक्ट साइन किया गया था। जैसे अभी रिसेंट में नीरज चोपड़ा को स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि इंडियंस को प्रमोट किया जा सके कि वो स्विट्ज़रलैंड में एज अ टूरिस्ट जाए, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाए और वहाँ पे ट्रैवल करने जाए, घूमने जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये भी तो एक, अगर नीरज चोपड़ा देखें तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन। तो अब इनको एनरोल किया गया कि वहाँ पर आप जाइए एंड एनकरेज किया जाएगा उससे, ताकि लोग टूरिज्म में बढ़ावा देखने को मिले इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हरिमाऊ शक्ति 2022। ये हरिमाऊ शक्ति 2022 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड मलेशिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई। इंपॉर्टेंट, अगर लोकेशन पूछी जाए कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, किस लोकेशन में, तो मलेशिया में कंडक्ट इसको कराया गया था। आई रिपीट, वापस आते हैं, हरिमाऊ शक्ति 2022। ये हरिमाऊ शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इस हरिमाऊ शक्ति में किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया और मलेशिया ने। कहाँ पर हुई? मलेशिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। पहली बार कब हुई थी या फिर कब से होती आ रही है? 2022 से इस एक्सरसाइज को हम होते देख रहे हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंदौर प्लान कर रहे हैं इंडिया का पहला रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। अब ये रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड क्या, आप ये सब छोड़ो, सबसे पहले आप फोकस करो बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको इशू करेगी और वो बोलेगी आप हमें इतने टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दो और हम उस मनी पे आपको एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा था सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, या फिर अभी आपने देखा यूरोप, जो यूरोपियन नेशंस है, यूके हैं, ये भी अपने इशू कर रहे थे बॉन्ड, ताकि जो इनकी करेंसी में इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कैटर किया जा सके, उसको स्लो किया जा सके। तो कमिंग बैक अगर देखें, ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोलेगी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर की, बोलेगी इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कि अपने जो नागरिक हैं वहाँ के, कि आप हमें बॉन्ड्स दो, जैसे फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न मिलता रहता है, ऐसे ही ये बॉन्ड्स होते हैं कि आप हमें इतना 1 करोड़ रुपया बॉन्ड्स में लगाओ और उस पर हम 2, 4, 5 जितना भी परसेंट है रिटर्न हम आपको महीने ईयरली रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। पर वो अमाउंट है ना, वो कुछ फिक्स पीरियड तक फिक्स हो जाएगा, मतलब एक 10 साल तक। जहाँ पे यहाँ बात की गई, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोला कि जो ये सोलर प्लांट को डेवलप करने के लिए पैसा जनरेट किया जाएगा थ्रू दिस बॉन्ड्स, म्युनिसिपल रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये 10 साल तक के बॉन्ड्स होंगे और हमें अराउंड $31.8 मिलियन, मतलब देखा जाए तो 2.6 बिलियन रुपीज़ को रेज करना पड़ेगा तो 10 ईयर के बॉन्ड्स को सेल करके फॉर दिस सोलर पावर प्लांट। और जो ये बॉन्ड परचेज करेगा उनको एक फिक्स अमाउंट पे रिटर्न इंटरेस्ट का जो भी डिसाइड किया जाएगा उतना मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई ने होल्ड की एन ऑनबोर्डिंग ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट्स बाय पेटीएम सर्विसेज। ठीक है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को जो अभी आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि आपको जो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस है ना, उसके लिए वापस से अप्लाई करना पड़ेगा और विद इन 120 कैलेंडर डेज। इसकी बदौलत क्या हुआ कि वो कोई भी नए मर्चेंट्स को या फिर किसी भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको उन्हीं के साथ अपना अभी बिजनेस चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, उसको कितना प्रोजेक्ट किया गया है फॉर फिस्कल ईयर 23। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 7%। ठीक है, याद रखेंगे पहली चीज। यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये तो था कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 23 के लिए, मतलब 2022 से 2023 के लिए 7%। यहीं पे अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर 2024, मतलब 2023 से लेके 24 के लिए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो कितनी प्रोजेक्ट की गई? 6% प्रोजेक्ट की गई। नॉट जस्ट दिस, ये तो हो गया आपका S&P ग्लोबल। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की 6.5% की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट की इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.8%, जो पहले 7.4% थी।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं बात करूं, जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी है 7%, पहले 7.5% थी। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं आरबीआई की, इन्होंने प्रोजेक्ट की 7%। मूडीज़ की मैं बात करूं तो इन्होंने पहले 7.7% प्रोजेक्ट की थी, उसको स्लैश करके अब कितना कर दिया है 7%। और एसएनबी ग्लोबल की 2022-23 के लिए रहेगी 7%। तो ये याद रखेंगे। ये जो डाटा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए, नहीं तो इसको कहीं नोट कर लो। इनमें से एक क्वेश्चन तो लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। आगरा अग्रेरियन फेस्टिवल, आगरा अग्रेरियन फेस्टिवल ये आपका नौखाई फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, उड़ीसा में। फिर यूआईडीआई ने टॉप किया ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर यहीं पे मैं पूछूं अंबुबाची फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है अंबुबाची, ये आपका असम में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर याद रखेंगे इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया गया बाय ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है स्मर्थ। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक एमओयू साइन किया स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ टू मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम्स। इंडिया का पहला एनईपी 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल लॉन्च किया गया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जिसका नाम है वेंचू राइज। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन लद्दाख। अमित शाह ने लॉन्च किया एक मैस्कॉट ऑफ द 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद, और ये कहाँ पे हुए थे गेम्स, गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। सिर्फ साइकिलिंग इवेंट दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिपुरा ने सेटअप किया इंडिया का पहला बायो विलेज। इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ वाटर शेयरिंग पैक्ट। PM Modi virtually addressed the plenary session of Eastern Economic Forum. India and UK conducted a mega cyber security exercise. 26 कंट्रीज में इन्होंने पार्ट लिया यहाँ पर। स्टरलाइट पावर ने कमीशन किया 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन गुजरात में। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इन्होंने इम्पोज किया पेनल्टी ऑफ 3500 करोड़ रुपए ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर। राजस्थान ने लॉन्च किया अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। अदानी ग्रुप ने बिल्ड किया 3 गीगा फैक्ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, मास्टरकार्ड ने रिप्लेस किया पेटीएम को एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCC। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अभी ये लॉन्च किए गए। देखो, एशिया पैसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस फ्रांस में। लेकिन अगर मैं यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है 13 विनिंग प्रोजेक्ट्स रहे थे इन एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में। इन 13 विनिंग अवार्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 6 डिफरेंट कंट्रीज से थे ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, जो कि हैं अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, ईरान एंड थाईलैंड। इन 6 कंट्री से 13 प्रोजेक्ट्स थे। फिर ये अनाउंस कहाँ से किया गया, देखो वही मैं बता रहा था कि हेडक्वार्टर तो यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है, लेकिन इन अवार्ड्स को अनाउंस किया गया बाय यूनेस्को बैंकॉक के द्वारा अनाउंस किया गया इन अवार्ड्स को। ऑलराइट, और अगर पूछा जाए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज अवार्ड्स दिए गए 6 डिफरेंट नेशंस में दिए गए, यूनेस्को बैंकॉक से ही अप्रूव किए गए। अगर इंडिया की बात की जाए, अब आ जाते हैं जो मेन चीज़ याद रखनी है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये म्यूजियम है, कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को अभी रिसेंटली अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है, आई रिपीट, इनको किससे सम्मानित किया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन, इन दोनों को अभी रिसेंटली याद रखेंगे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, इन दोनों को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंडर द कैटेगरी एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस, री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किनको अभी सम्मानित किया गया, ई स्वराज, ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर ये 2 प्रोजेक्ट आते हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
और इनको इससे सम्मानित किया गया ऑफ द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2021-22 के लिए। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ई गवर्नेंस की ऑन 26 से 27 नवंबर में। कब हुई? 26 से 27 नवंबर में। और कहाँ पे हुई? कतरा, जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? DARPG एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो देखो 3 से 4 चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। पहली, ये 25th NCEG कब हुई? 26 से 27 नवंबर के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? जम्मू एंड कश्मीर, कटरा में हुई। किनके द्वारा कराई गई? DARPG के द्वारा अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कराई गई। फिर इसकी आ जाती है थीम क्या रही जो आपको याद रखनी है? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ये आपकी थीम रही। और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ये कैटेगरीज थी ना अवार्ड्स की, ये 5 कैटेगरीज में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके ये कैटेगरीज भी पढ़िए। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन साइंटिस्ट रिसीव इंटरनेशनल अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन अलायंस। अब देखो स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, कोई अलायंस सेटअप की गई, तो उनके लिए भी अवार्ड्स भी दिए गए थे। तो इसी से रिलेटेड याद रखेंगे अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को भी ऑनर किया गया 17वें एडिशन ऑफ BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड से। आई रिपीट, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को भी सम्मानित किया गया 7th एडिशन ऑफ BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड की तरफ से। रीज़न क्या था? फॉर इट्स रोल फॉर सपोर्टिंग ग्लोबल लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को 17th एडिशन ऑफ BBVA फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित करा गया। अगर मैं इस GSLEP की बात करूं जो कि है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का प्रोग्राम है। 12 गवर्नमेंट, कंजर्वेटनिस्ट, साइंटिस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशन के मिलके इस इकोसिस्टम को सेटअप किया गया था। 2013 में इसको सेटअप किया गया था। और रीज़न क्या है? जो आपका एरिया है जो स्नो लेपर्ड का, जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं। ठीक है, और इन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाता है मैक्स फाइनेंशियल। इनको अभी IRDAI का अप्रूवल मिल गया कि ये अपना ही 5.17, इनकी खुद की कंपनी में जो मैक्स कंपनी है, इसकी कंपनी में मित्सुई सुमितोमो का स्टेक है 5.17% का। तो मित्सुई सुमितोमो का 5.17 का स्टेक परचेज करने के लिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को अभी अप्रूवल मिल गया है IRDAI का। तो देखो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टेक बाय करेगा 5.17% का। किससे बाय करेगा? मित्सुई सुमितो कंपनी से। और ये 5.17% का स्टेक किस में है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। ठीक, और इससे जो टोटल स्टेक हो जाएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, वो टोटल हो जाएगा 87% का। नेक्स्ट आ जाते हैं CIL, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड अभी एक्वायर करेगा 7.09% स्टेक इन की मोबिलिटी सॉल्यूशंस 487.5 करोड़ रुपीस के लिए। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा भी GSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये इंडिया भूटान डेवलप्ड C-54 रॉकेट रहेगा। इस C-54 रॉकेट की मदद से अभी 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे एक आ जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06, ये यहाँ से लॉन्च की गई थी। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ओशन सेट 3, इसको लॉन्च किया गया था। 8 नैनो सैटेलाइट्स को यहाँ से लॉन्च करा गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको, ये भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से GSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया गया था, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, ओशन सेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करा गया था। इसरो की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे? S सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में। और कब इस्टेब्लिश? 1969 में करा गया था।
नेक्स्ट आ जाता है इक्षक। इक्षक क्या है? ये एक थर्ड शिप है ऑफ सर्वे वेसल। ठीक, इसको लॉन्च किया गया चेन्नई में एट L&T लार्सन एंड टार्बो, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, इक्षक का मतलब होता है गाइड, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखनी है, कहां पर इसको लॉन्च किया गया। हमने तो देख लिया कि चेन्नई तमिलनाडु में, लेकिन अगर चेन्नई तमिलनाडु की जगह डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कटुपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया। फिर क्वेश्चन आ सकता है किसने इसको डेवलप किया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE अलॉन्ग विद L&T के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया था। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट इक्षक नाम रहेगा और ये थर्ड ऑफ द 4 सर्वे वेसल रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं एक लॉन्च पैड की और एक मिशन कंट्रोल सेंटर डेवलप किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर पे बाय अग्निकुल। और ये जैसे आपका इसरो, आपने कभी मूवीज में भी देखा होगा, जब कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो वहाँ पे आपको मूवी में दिखाते हैं एक पूरा कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ पे काफ़ी सारे टीवीज होते हैं, काफ़ी सारे आपकी स्क्रीन्स होती हैं, जहाँ से मॉनिटर किया जाता है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि कब रॉकेट को क्या करना है, कैसे उसका इग्निशन स्टेज होगी, कब उसका फिर टेक ऑफ करेगा, कैसे उसकी स्पीड कितनी है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा, उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड, सब चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। तो ऐसे ही अग्निकुल जो कि एक स्पेस सेटअप है, स्पेस स्टार्टअप है, जो कि अभी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है। इस अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला एवर लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये जो कंट्रोल सेंटर होगा ना, ये आपका इसरो के कंट्रोल सेंटर से लिंक होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन लेन देन होगी तो वहाँ से ईजिली ट्रांसफ़र की जा सकती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज की जा सकती है ईजिली, ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके एंड डेफिनेटली अग्निकुल कॉस्मोस को इसरो का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सके इसमें। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने अपना पहला फर्स्ट एवर लॉन्च पैड लॉन्च किया था। और कहाँ पे? और एक लॉन्च पैड के साथ साथ कंट्रोल सेंटर भी लॉन्च किया जो कि ऑपरेट किया जाएगा बाय अ प्राइवेट प्लेयर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और एक चीज़ और, अगर मैं बात कर रहा हूँ अग्निकुल कॉस्मोस की, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे रहे हैं? चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है, तो हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट आ जाता है नासाज ओरियन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड द मून। जो नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जिसमें आपका आर्टेमिस 1 मून मिशन था, उसको अभी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने, और किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज़ क्या आ रही है कि ये जो मून का ऑर्बिट है ना, उसको उसमें सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसएक्स के द्वारा भी ड्रैगन कार्गो मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, स्पेस में ले जाया गया था। और ये ड्रैगन कैप्सूल बेसिकली इनिशियली तो लॉन्च किया गया था ये आपका सप्लाईज के लिए, एज वेल एज इसी में आपके ह्यूमंस को रख के बाहर ले जाया जाएगा मार्स के लिए, जो लॉन्च किया गया था। ठीक, लेकिन अभी इसको क्या टेस्ट करके फेज में और लॉन्च किया गया कि सप्लाई मिशन के तौर पे यहाँ से इन्होंने, जैसे सप्लाई क्या हो गई, आपके सोलर विंग्स हो गए, आपके रिसर्च के लिए कोई मॉड्यूल हो गया, आपकी सप्लाईज हो गई, खाने पीने का सप्लाई हो गया, तो उसको लॉन्च किया गया। और ये टोटल सप्लाईज थी 7,700 पाउंड्स की टोटल सप्लाई को इस कार्गो ड्रैगन कार्गो मॉड्यूल के द्वारा लॉन्च किया गया और इन्होंने जाके डॉक किया कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। नासा ने इसको लॉन्च किया था, पहली चीज़। ठीक, और सॉरी नॉट नासा, स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन कार्गो को, जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके डॉक किया। ठीक, याद रखेंगे। और इसमें कार्गो कितना था? 7,700 पाउंड का ये कार्गो रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर डेविस कप। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए डेविस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये मेंस टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका भी 110वां एडिशन हमें देखने को मिला। और किसने जीता 2022 में डेविस कप? तो कनाडा ने जीता। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, कनाडा ने डेविस कप में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है 2019 से, और ये इनका पहला टाइटल रहेगा डेविस कप का। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया टू विन दिस डेविस कप टाइटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं राइजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी। कब ऑब्जर्व किया जाता है राइजिंग डे ऑफ एनसीसी? तो याद रखेंगे जो 4th संडे होता है ना नवंबर का, 4th संडे ऑफ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं राइजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और इस बार हमने 74th एनसीसी डे ऑब्जर्व किया 2022 में। स्टार्ट कब किया गया था? 1946 में हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया था। ऑलराइट, और इस बार हमने इसको ऑब्जर्व किया, याद रखेंगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। अगर एनसीसी की मैं बात करूं तो मोटो क्या रहेगा? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। और 27 नवंबर को इस बार हमने ऑब्जर्व किया राइजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका 74th एडिशन था। फिर बिहार की बात करते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, हर घर गंगा जल। आई रिपीट, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। ये किस स्टेट का है? बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। व्यक्ति का नाम पूछे जाए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये बेसिकली 4174 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रणय वर्मा की बात करें, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सत्येंद्र प्रकाश, इनको अपॉइंट किया गया एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सुजॉय लाल थाउसन, इन्होंने टुक ओवर किया एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, नॉइज ने अपॉइंट किया वानी कपूर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर देयर न्यू स्मार्ट वॉच। IFS ऑफिसर श्वेता सिंह को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ PMO। जस्टिस उदय उमेश ललित जी, ये 49 चीफ जस्टिस बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। लेकिन अब हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे अगर पूछा जाए तो ये उदय उमेश ललित जी को रिप्लेस करेंगे। अगस्त्य तानोकुआम की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। सुरेश N पटेल को अपॉइंट किया गया न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इंपॉर्टेंट। रविंद्र टक्कर, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ वोडाफोन इंडिया। ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। मार्क करेंगे। पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या रहेगा? विक्रांत। और कौन सी फोर्स को दिया गया? इंडियन नेवी को। फिर इंडियन नेवी ने रिसीव किए 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम USA। इंडिया एंड ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा 4th, ये कमेंट्स कहाँ हुई? राजस्थान में। लोकेशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 स्टार्ट की गई, कहाँ पर? चांदी मंदिर, हरियाणा में। इंडिया एंड फ्रांस नेवीज ने कंडक्ट करी एक्सरसाइज इन द अटलांटिक ओशन। इंडियन एयरफोर्स विल रिटायर ऑल स्क्वाड्रंस ऑफ MiG-21 कब तक? बाय 2025 तक। फिर इंडिया एंड USA होल्ड करेंगे मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ पर? उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में, अक्टूबर मंथ में। इंडिया नेवी ने साइन किया एक MOU इसरो के साथ फॉर डाटा शेयरिंग एंड कॉपरेशन ऑन द सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। अभी रिसेंटली CEO राउंड टेबल ऑर्गेनाइज कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक, ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक, फिर आ जाता है इंडिया मलेशिया के द्वारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, हरिमऊ शक्ति 2022 मलेशिया में हुई। IRDI ने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स एंड सिंप्लीफाइड रूल्स टू सेटअप इंश्योरेंस फर्म्स। इंदौर ने प्लान किया इंडिया का पहला रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। RBI होल्ड करेगा ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट बाय पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, इनको रोक लगा दी है। और अभी ये कोई नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते, पुरानों को ही सर्विस प्रोवाइड करनी है। S&P कट इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू 7% फॉर फिजिकल ईयर 23। एमिरेट्स की बात करें, इन्होंने और गल्फ एयर ने लॉन्च किया कोड शेयर पार्टनरशिप प्रोग्राम को। 2022 यूनेस्को एयर पैसिफिक अवार्ड्स की मैं बात करूं, फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इनको दिया गया। फिर NAEG 2021-22 की बात की जाए तो ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन, इन्होंने गोल्ड अवार्ड जीता। फिर इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को ऑनर किया गया 17वें BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन
अवार्ड से। IRDAI की बात करें, इनको अप्रूव किया गया, इन्होंने अप्रूव किया MFSL एक्विजिशन को ऑन रेजिडुअल 5.17 स्टेक जो कि हेल्ड किया गया था बाय MSI इन मैक्स लाइफ, और इसके बाद इनका टोटल स्टेक परसेंट हो जाएगा 87%। CIL ने एक्वायर किया 7.09% इन की मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर 487.5 करोड़। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV C-54 रॉकेट कैरिंग 9 सैटेलाइट्स इंक्लूडेड EOS-06 एंड INS-2B। इक्षक की बात करें, इसका मतलब होता है गाइड, थर्ड शिप रहेगा ये ऑफ सर्वे वेसल ऑफ प्रोजेक्ट 15B। नेक्स्ट, अग्निकुल opens its first launch pad and mission control center at सतीश धवन स्पेस सेंटर। नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने आर्टेमिस 1 को लेके गए थे स्पेस में, वो एंटर कर चुका है मून के ऑर्बिट में। SpaceX ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया और इसने डॉक किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, ताकि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और सोलर एरेज को सप्लाईज को भी डिलीवर किया जा सके टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। डेविस कप की बात करें तो कनाडा ने ये पहली बार जीता डेविस कप 2022 में, और ये मेंस टाइटल रहता है मेंस टेनिस के लिए। 74th NCC रेजिंग डे 27 नवंबर को, और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लॉन्च किया गंगा वाटर सप्लाई स्कीम को, कहाँ पर, राजगीर में। ठीक, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर इज अ रिपोर्ट, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की जाती है। सेकंड, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। थर्ड, एज पर GST एक्ट स्टेट्स आर अश्योर्ड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉसेज ऑफ रेवेन्यू रिगार्डिंग GST अप टू हाउ मेनी ईयर्स। और फोर्थ क्वेश्चन, विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड अबाउट द PSLV C-54 रॉकेट यूजिंग बाय इसरो। और फिफ्थ आ जाता है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर TB मुक्त भारत कैंपेन। तो ये है 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, बिना चीटिंग के साथ कमेंट करना है, एंड अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.